بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جس کو جو ضرور چلی پاتا تو آواز بندہ پڑھنے کی والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا مدینہ المؤمنین۔ تمام درود کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت ہے، مختصر وقت کے اندر جو امام جات وہ سنانا ہے وہ ایک شان قرآن ہوگی اور آداب قرآن ہوں گے، اور ایک بات اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے جو ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا قدر خاص عطا فرمایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کا کتنا خوف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آج جو معاشرہ بن گیا ہے، دنیا دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کے پیچھے زیادہ دوڑ پڑی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ رکھتی کہ جو قرآن مجید ہے اس پر اگر چلیں گے، جو اس کے احکامات ہیں ان کو بجا لائیں گے تو اللہ جل شانہ بہت ہی خاص انعام عطا فرماتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ذرا بات میری غور سے سنی، آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بچہ ہے لڑکا ہے اس لیے بات کس طرح سنیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو باتیں کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زندگی میں جب تک زندہ ہے، جتنی عمر اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس عمر میں اللہ جل شانہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھتا ہے، جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے احکام نازل کیے ہیں ان کو بجا لاتا ہے، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کس طرح کا انعام عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو قرآن مجید نورانی شکل میں اس بندے کے کفن میں داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد اس شخص کو جو ہی دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد قرآن مجید نورانی شکل میں اس شخص کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے دوست، تو نے جتنی اللہ جل شانہ نے تجھ کو عمر عطا فرمائی، تو نے میرے مطابق ہر کام کیا، اب تو ٹھہر میں بھی آتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اپنے عمل کرنے والے کو، تو ٹھہر میں ذرا آتا ہوں۔ تو قرآن جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ کر کہتا ہے، میرے دوست، تھوڑی سی دیر میں تجھ سے دور ہوا، جدا ہوا، کیا اتنی دیر میں تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اب اندازہ لگائے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ اے میرے دوست، اے میرے پڑھنے والے، میں تھوڑی سی دیر تجھ سے جدا ہوا، تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لیکن ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے کہ ہم تو ہفتہ ہفتہ قرآن کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ بہرحال قرآن مجید جاتا ہے، جنت سے اعلیٰ قسم کا بچھونا لے کر آتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کو دیتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، نم کنعمت العروس، سو جاؤ جس طرح دلہا سوتا ہے۔ جس طرح دلہن کو دولہے کے بغیر کوئی نہیں جگاتا ہے، تو اسی طرح تجھ کو تیرے رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جگائے گا۔ کتنا انعام اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے
के पढ़ने वाले को। और फरमाया ये जो मैंने रिवायत पेश की है, ये शरह सुदूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब है, उससे पेश की है। अब तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी से पेश करता हूँ। एक शख्स फौत हुआ, बड़ा ही पापी मुजरिम गुनाहगार बंदा था, फौत होने लगा। अल्लाह जल्ला शाह ने उसके दिल के अंदर एक बात डाली। वो बात क्या थी? उसकी घर वाली हामिला थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे के दिल में ख्याल डाला कि अपनी बीवी को कुछ वसीयत कर। तो वो वसीयत क्या करता है? सुनाओ वसीयत। वो रहता उसने कहा है मेरी बीवी, ये जो तेरे पेट में मेरी औलाद है, जब ये बच्चा पैदा हो तो इसको तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ कुरान मजीद की तालीम देनी है। बच्चा पैदा हुआ, बाप की वसीयत के मुताबिक माँ ने जब चलने फिरने के काबिल हुआ, बोलने के काबिल हुआ, माँ ले गई उस्ताद के पास और उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक बच्चे को सही तरह पढ़ना नहीं आता था, फिर भी उसने पढ़ा अपनी तोतली ज़बान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह जल्ला शाह ने फरमाया उसके बाप को कब्र में जब से फौत हुआ था, अजाब हो रहा था, अजाब में मुब्तला था। तो अल्लाह जल्ला शाह ने फरमाया फरिश्तों से मेरे इस बंदे से वो अजाब उठा लिया जाए। या मौला करीम क्या मामला है, क्या माजरा है? आज तक तूने जर्रा बराबर तखफीफ नहीं फरमाई, अजाब में कमी नहीं फरमाई, लेकिन आज क्या वजह है जो फरमाया कि सारा का सारा अजाब उठा लिया जाए? तो अल्लाह जल्ला शाह ने फरमाया इसके बच्चे ने मुझे अपनी तोतली जबान में रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती है इसका बच्चा तोतली जबान में रहमान रहीम कहे और फिर भी मैं इसको अजाब दूं। अब बंदे को चाहिए कि जो तालीम हमारी बख्शिश का जरिया है, दुनियावी तालीम के साथ साथ इसको भी रखना जरूरी है। ये तो ना हो हमारे मरने के बाद हमारी औलाद MA किया, BA किया, डिग्री हासिल की और कब्र पर जाकर कहें या रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने हासिल किया सबका सवाब अपने बाप को पहुंचाते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर फायदा होगा तो इसी का होगा जब बेटा कब्र पर बैठ कर पढ़ेगा अर्रहमान अल्लाहुल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में मजीद के सदके रहमतें फरमा देनी है। लेकिन हम इस किताबुल्लाह से दूर हो गए हैं। अब वो फरमाते हैं, हदीस से ही आपको सुना रहा हूँ, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीही मुल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामति ज़ौउहु मिन अहसनि ज़ौइश शम्स। अब वो फरमाते हैं जो बंदा कुरान पढ़े, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीही, जो कुरान पढ़े और जो उसमें है उन पर अमल करे, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामति, जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ के फिर उस पर अमल करता है, तो हज़रत फरमाते हैं बरोज़े माशर उस पढ़ने वाले के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ताजन यौमल क़यामति ज़ौउहु मिन अहसनि ज़ौइश शम्स, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। कितनी शान अल्लाह जल्ला शाह ने कुरान मजीद पढ़ने वाले को अता फरमाई है। और हदीस मुबारक सुनिए, अब फरमाते हैं 3 बंदे हैं जिनकी जन्नत तालिब है, जन्नत ख्वाहिश रखती है, या मौला करीम ये मुझे अता फरमा। लोग ख्वाहिश करते हैं, दुआएं मांगते हैं अल्लाह जल्ला शाह की बारगाह में, या मौला करीम जन्नत अता फरमा। लेकिन ऐसे खुश नसीब लोग कौन हैं जिनको खुद जन्नत मांग रही है, या मौला करीम ये मुझे अता फरमा। पहले नंबर पर खुद सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी जन्नत तालिब है, या मौला करीम मोहम्मद करीम मुझे जल्दी अता फरमा। दूसरे नंबर पर फरमाया शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर और उमर, इनकी जन्नत तालिब है और कहते हैं या मौला करीम ये मुझे जल्दी अता फरमा।
शान हो गई कुरान की। अब हमने इस कुरान के साथ हमने क्या कर डाला है? हर मसलक वाला, कोई वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, एक ही बात नहीं करते, सबकी बात करते हैं। जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो बरेलवी हजरात इश्तिहार छपवाते हैं, जिस पर लिखा होता है एक तरफ या अल्लाह, दूसरी तरफ या रसूल अल्लाह, दरमियान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर दूसरे वहाबी हजरात वो महफिल कराएं तो उन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान मजीद की आयत और अल्लाह रसूल के नाम भी लिखे जाते हैं ना, इश्तिहार और फलक सफर। और जो शिये हजरात हैं, जब मुहर्रम का महीना आता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, ये कुरान मजीद की आयत लिख देते हैं। अब लिख तो दिया उन्होंने, अब ये बात याद रखनी है कि कुरान मजीद और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक का अदब करना जरूरी है, लेकिन इन नाम मुक़द्दस को बेअदबी से बचाना फर्ज है। अब इन्होंने नाम लिख लिए, इश्तिहार छाप लिए, अब क्या हुआ? 2, 3, 4, 5 दिन गुजरे, या बारिश आई या कोई दूसरा मामला बना, वही इश्तिहार गिरे और नीचे गंदी नाली गटर वाली उसमें आ पड़े। अब क्या हुआ? हजरत इमाम एक फरमाते हैं तफसीर सावी शरीफ के अंदर, मन वजद इस्मल्लाहि तआला मकतूबन फी वरक़तिन मौदूअन तरक़हु फ़क़द कफ़रा। इमाम फरमाते हैं कि जिस बंदे ने अल्लाह जल्ला शानहू का नाम जमीन पर गिरा हुआ देखा और ना उठाया, तो फरमाते हैं अगर जानबूझकर अल्लाह रसूल का नाम नीचे पड़ा हुआ छोड़ दिया तो फरमाया ईमान से भी खत्म हो सकता है। लेकिन हमने अखबारों में, इश्तिहारों में इसी नाम को, जिस कुरान की वजह से अल्लाह जल्ला शानहू ने रहमान रहीम कहने की वजह पर वालिदैन की बख्शिश फरमा दी, उसी कुरान को हमने जगह जगह पर आज रोक दिया है। लेकिन जब कोई सिगरेट 2 रुपए नीचे पड़े हों उसको उठा लेते हैं, अगर कुरान की कोई आयत उनकी पड़ी हो तो उसको कोई नहीं उठाता है। अब आप देख लें, जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ इस्लामियात एक पढ़ाई जाती है। इस्लामियात में पूरी की पूरी 10-10, 12-12, 15-15 सूरतें होती हैं। जब उनको पढ़ लिया जाता है तो वही सूरतें ये जो चीज देने आए हुए होते हैं लोग, उनको देते हैं रद्दी बनाकर, फिर वही उन पर छोले रखते हैं, पापड़ रखते हैं, पतीसा वगैरह रखते हैं। बच्चों ने खाया और पीछे फेंक दिया। खुदारा अगर आप किसी को देखें ऐसी बेअदबी करते हुए तो उनसे बचाएं, खुद भी बच्चे और उनको भी तलकीन करेंगे खुदारा ऐसी बेअदबी से बचो। क्यों कि 16 या 17 मरतबा ये दुनिया पहले खत्म हो चुकी है। अल्लाह जल्ला शानहू चंद लोग बचाता, फिर आबादी बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती। वजह क्या थी? अल्लाह जल्ला शानहू अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजता और काफिर लोग अंबिया अलैहिस्सलाम की बेअदबी करते, बेहुरमती करते, कत्ल करते, ऐदाएं तकलीफें देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़ब फरमाता और सबको खत्म कर देता। और आज हमने भी वही काम कर दिया है जो काफिरों ने किया। उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की बेअदबी, बेहुरमती की, हमने खुद अल्लाह जल्ला शानहू के कुरान को जगह जगह पर बुलाया, रसूलुल्लाह के फरमान को, नाम को जगह जगह पर बुलाया। खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें और दूसरों को भी कहें यार ये बेअदबी है, इससे बचें, ये ना हो इसी वजह से हम पर अल्लाह जल्ला शानहू अज़ाब नाज़िल फरमाए। ये बात समझ आ गई। और अब सहाबाए किराम के खौफ की 1-2 बातें सुनाता हूँ, इतने देर में वक्त भी खत्म हो जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत उमर, इन दोनों ने एक बात फरमाई। बाद में हजरत उमर के बेटे और हजरत अबू मूसा अशरी के बेटे ने फरमाया आपस में बात करते हुए, यार तुम्हें याद है कि हजरत अबू मूसा अशरी को हजरत फारूक आज़म ने एक बात कही थी
हुजूर मुझे याद नहीं है। हजरत अबू मूसा अशरी के बेटे कह रहे हैं हुजूर मुझे बात याद नहीं है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मेरे बाप ने तेरे बाप से एक बात कही थी, वो क्या थी कि हजरत उमर ने फरमाया हमने हजूर अलैहिस्सलाम के साथ जंगें लड़ी, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, फिर क्या हुआ? अगर इन सब अमाल की वजह से अल्लाह जल्ला शानुहू हमें छोड़ दे बरोगे माशर, सिर्फ इतना कह दे कि जाओ तुम्हें छोड़ा, ना अजाब ना सजा ना जजा, तो हजरत उमर फरमाते हमारे लिए इतनी बड़ी खुशकिस्मती होगी। और आगे से हजरत अबू मसूद मूसा अशरी के बेटे आप फरमाते जो मेरे बाप ने कहा था मुझे याद नहीं है, आप फरमाए क्या कहा था? तो फरमाते हैं हजरत अबू मूसा अशरी ने फरमाया था कि यार उमर मुझे हमें उम्मीद है कि अल्लाह जल्ला शानुहू जरूर रहमत फरमाएगा, क्योंकि आखिर हजूर अलैहिस्सलाम की निगरानी में जो अमल हमारे हुए हैं। अब देख लें सहाबाए कराम होकर वो एक कहते हैं कि अल्लाह जल्ला शानुहू हमें बराबर छोड़ देना, जला दे ना फला दे, दूसरे कहते हैं हमें उम्मीद है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पक्के हमारे अमल कबूल हैं, लेकिन हमने समझ रखा है कभी नमाज पढ़ ली तो कहते हैं कि हमने अल्लाह जल्ला शानुहू को एहसान कर लिया है। हमको चाहिए कि अल्लाह जल्ला शानुहू की इबादत करें। अगली हदीस मुबारक सुनिए, हजरत अम्र बिन आस आप सरकार बीमार हैं, कुछ सहाबाए कराम आपको पूछने की खातिर गए, मैं जरा तवज्जो करनी है जैसा मैं आखिरी बात है भाई पता की बात है, सोने के पानी के साथ लिखने की बात है। हजरत अम्र बिन आस बीमार हैं, कुछ सहाबाए कराम आपको पूछने के लिए गए, तो आप एक तरफ मुंह करके दीवार की तरफ तो रोने लगे। रोते रोते आपके बेटे ने आपसे फरमाया अब जी रो क्यों रहे हैं, हालांकि आपको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फलां बिशारत दी है, फलां बिशारत दी है, फलां बिशारत दी है। तो आपने फरमाया है मेरे बेटे ठीक है तेरी बात सही है, एक वक्त था मेरे ऊपर जब मैं ईमान से बामुशर्रफ नहीं हुआ था, इस्लाम से दूर था, उस वक्त मेरी निगाहों में मेरा दुश्मन हजूर से इलावा कोई नहीं था। उस वक्त अगर हजूर मुझे मिल जाते तो मैं आपको कत्ल कर देता, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दिल के अंदर ईमान डाला, फिर ईमान इस तरह डाला कि हजूर अलैहिस्सलाम से कोई चीज भी मुझे महबूब नहीं थी, लम्हा भर भी मैं आपके बगैर नहीं गुजार सकता था। पहले वाली जो हालत थी कुफर की, अगर मैं उस हालत पर मर जाता तो मैं पक्का जहन्नमी था। अगर इस हालत पर मरता जिस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, हजूर से ज्यादा महबूब भी हमें कोई नहीं था, उस वक्त अगर दुनिया से जाता तो हमें उम्मीद थी कि अल्लाह जल्ला शानुहू जन्नत अता फरमाता, लेकिन अब फिर हजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद हमें जिम्मेदारियां सौंप दी गई, किसी को किस इलाके का खलीफा बना दिया गया, किसी को किस इलाके का। अब हमको यकीन भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्या पता अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता फरमाता है, जहन्नम अता फरमाता है। इसीलिए अल्लाह जल्ला शानुहू ने कुरान मजीद में फरमा दिया अल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। क्या मतलब? अल्लज़ीना युतूना वो लोग जो देते हैं अल्लाह की राह में, मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खर्च करते हैं उस रिज़्क़ से जो अल्लाह ने अता फरमाया है, फिर भी डरते हैं क्या पता मौला करीम कबूल फरमाए या ना फरमाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं तो वो हमारे लिए चल रहे अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर में जो भी इंशाअल्लाह की तरह से पेश करता हूँ, सैकी का कलाम है, किसी शायर ने क्या कुछ फरमाया है, कबर दसाती गोल बिरावान, कबर दसाती गोल बिरावान, कबर सख्त नारी बाद मरण दे कुछ नहीं लगना, पहले कर प्यारी कबर दसाती गोल बिरावान।
ہے